Yeah, this is the question, longest zigzag path in a binary tree. हमें एक root given है of a binary tree, or it's saying a zigzag path for a binary tree is defined as follows. We choose any node in the binary tree, any direction, like we can pick any nodes, कहीं से भी हम start कर सकते हैं, and then we can move it either left direction or right direction because we have binary tree. So obviously we can go in two directions only. Next look at if the current direction is right, move to the right child of the current node, otherwise move to the left child. Okay, like the direction that we have picked, उसमें हमने move करना है. Change the direction from right to left or from left to right. मतलब पहले आपने for example left direction pick की तो आपने next time right pick करनी है, फिर आपने next time right pick की उससे next time left and so on, like आप alternate करते जाएंगे अपनी directions में. अब वो कह रहे repeat the second and third steps until you can't move in the tree. ठीक है, आपने इस steps को repeat करना है जब तक आप further move नहीं कर सकते, like if कोई null node पे आप reach कर गए हैं. Okay, zigzag length is defined as the number of nodes visited minus 1. Okay, a single node has a length of 0. मतलब it's saying कि उसको देख लेते हैं, return the longest zigzag path contained in that tree. अच्छा, वो ये कह रहा है कि आपने मतलब क्योंकि आप अगर zigzag paths को देखें, कहीं से भी नोड को स्टार्ट करें तो you can have multiple zigzag paths. तो यहाँ पे से अगर हम like if you start from this node, so you can see कि यहाँ से आप या right जा सकते हैं या you can go to the left. Let's suppose if we try to go to the left direction, तो यहाँ से तो हम कहीं move नहीं कर सकते हैं. So we will say okay, first direction we can take is the right direction. Right direction ली आपने तो आप इस direction में move कर गए. अब आपने flip कर दी direction क्योंकि अब next time आपने right direction ले ली थी, अब आपने left direction लेनी है. But when you will take the left direction, so you see कि यहाँ पे से आप further आगे move नहीं कर सकते हैं. तो it's mean कि आपने जो है मतलब इस केस में आपने stop कर देना है क्योंकि इस केस में अब आप further कहीं move नहीं कर सकते. You have reached to the null node. So you will stop and you will see कि previously आपने दो nodes जो है वो visit की थी. तो इतने मतलब यहाँ से अगर आपने इस node से start किया था तो you have the zigzag path of length 2. इसी तरह if you like you can see कि यहाँ पे और भी paths हैं. If you start from this one, तो उस केस में एक zigzag path बनता है ये वाला of length 2, या फिर एक zigzag path बनता है ये वाला of length 3. ठीक है, इसी तरह if you start from this node, you can see इस केस में एक zigzag path बनता है ये of length 2, एक zigzag path बनता है आपके पास ये, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं. तो एक zigzag path आपके पास बनता है ये of length 2 और एक zigzag path आपके पास बनता है ये वाला, like you can start here यूं ये वाला. ठीक है, इसमें आपके पास 4 nodes आ रही हैं. और एक और zigzag path आपके पास बनता है इसी में ही. If you like this is the longest path that can be made from here, इस node पे से. और अगर आप इस वाली नोड से पिक करें फर्स्ट वाली से तो यू कैन सी यहाँ से आपके पास zigzag path बनता है सिर्फ यहाँ पे क्योंकि फिर आप राइट डायरेक्शन में मूव कर गए हैं. सॉरी नॉट दिस वन, कमांड सी. मतलब इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नोड तो यू कैन सी कि इस केस में आपके पास zigzag path बनता है ये वाला ऑफ जिसमें 3 नोड्स आ रही हैं. क्योंकि आप यहाँ से राइट गए फिर आप लेफ्ट गए, यहाँ से अगर आप राइट तो दोबारा नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए आपके पास इधर से ही एक पाथ बनता है. तो अब इसमें से हमने लॉन्गेस्ट पाथ रिटर्न करवाना है और लॉन्गेस्ट पाथ आपके पास जो है इस केस में वो बनता है ये वाला विच हैव 4 नोड्स. बट एक्चुअली वो ये कह रहा है कि 4 नोड्स में आपने रिटर्न करानी, लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा वो भी होगा नोड्स विजिटेड -1. सिंस वी विजिटेड 4 नोड्स 1 2 3 4, हमने 4 नोड्स विजिटेड की, which means the longest path will be 4 - 1 equals to 3 nodes. मतलब उससे मतलब ये है कि कितने edges आ रहे हैं. There are 3 edges. This is the longest path of 3 edges, जो कि longest zigzag path है हमारे पास. So question समझ आ गया? जी मैम, क्वेश्चन क्लियर है.
All right. Any idea how we can solve this? मैम आई थिंक सो क्वेश्चन जो से ना जिस तरह हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि फॉर एवरी नोड के लिए हम डीएफएस कॉल करें ऑन द लेफ्ट साइड भी ऑन द राइट साइड भी। आ, हमने लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हम पिछली तरफ से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे थे इट मींस नेक्स्ट टाइम पे हमने अगर जिगजैग का पाथ इंक्रीज करना है ना उसके डिस्टेंस, तो इन दैट केस वो हमने राइट साइड की तरफ इंक्रीज करना है। इन दिस केस हम पहले राइट साइड पे आ रहे हैं, तो जब हम राइट साइड की तरफ आ रहे हैं तो ये एक लेंथ हुई है। अब हमने जब ऑन द लेफ्ट साइड भेजना है तो हमारी ये दो लेंथ होगी, बट जब हम ऑन द राइट साइड भेजेंगे ये लेंथ हमारी एक ही रहेगी। ठीक है, ये हमने मतलब अपने माइंड में रखना है कि अगर हम पीछे से लेफ्ट ही आ रहे हैं इट मींस इन दैट केस हमारे पास जो सा है वो हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो राइट से आ रहे हैं तो राइट वन नहीं रहेगी, लेकिन अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो टू हो जाएगी सेम एज इट इज। अब ये वन है ना, अब इन दिस केस अगेन अगर हम ऑन द राइट जा रहे हैं तो ये लेंथ टू हो जाएगी, बट ऑन द अगर लेफ्ट राइट साइड पे अगेन आ रहे हैं तो वो लेंथ हमारी वन ही रहेगी। अगेन सेम एज इट इज, ये अब हम लेफ्ट आ रहे थे इट मीन हमें अपोजिट की तरफ जाना है। अगर तो मैं ऑन द लेफ्ट साइड अगेन जाता हूँ ना इट मीन मेरे पास जो लेंथ है ना वो टू ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑन द राइट साइड आता हूँ ना ये मेरी लेंथ जो है वो थ्री हो जाएगी। तो मेनली हमें साथ एक ग्लोबल वेरिएबल अपने पास रखना पड़ेगा, जैसे ही हमारी मतलब लेंथ जो सी है वो इंक्रीज करती होगी ना वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर जाएगा। ठीक है, और अगेन हमारे पास जब इस साइड पे आएंगे तो ऑन द जहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड जब आ जाएंगे तब तो वो थ्री की देगी क्योंकि मजीद नोड ही नहीं है अभी। और अगर हम इससे ऑन द राइट साइड आते हैं तो वो क्योंकि ऑलरेडी राइट है तो तब भी ये थ्री रहेगी। ये क्योंकि है नहीं है तो इधर आएंगे नहीं हम एक्चुअली मजीद। सही। तो आई थिंक सो सिंपल डी हम डीएफएस कॉल करें। डीएफएस के अंदर एक पैरामीटर डायरेक्शन का हो सकता है, एक पैरामीटर हमारी लेंथ का होगा। ठीक है, हाँ ये दो पैरामीटर होंगे और एक ग्लोबल वेरिएबल हमारा लेंथ का डिक्लेयर होगा। और हम एवरी टाइम क्या करेंगे, पिछली सही है साइड से अगर बिल्कुल। राइट आ रही है तो इन दैट केस राइट के लिए भी कॉल करेंगे लेफ्ट के लिए भी कॉल करेंगे, बट अपनी जो लेंथ है ना वो इंक्रीज किसके लिए करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड के लिए। अब ऑपोजिट साइड का रखना है तो इन दैट केस आई थिंक एक और पैरामीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पैरामीटर हमारा लेफ्ट और राइट को ले रहा है ना और एक पैरामीटर रिकॉर्ड भी रखना है, तो वो हम आई थिंक एक और पैरामीटर फिर डीएफएस में देंगे। Like we started from here and we know कि हम यहाँ से राइट तो गए नहीं, मतलब लेफ्ट तो गए नहीं, मतलब जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन वहां से हम जीरो रिटर्न करवा देंगे राइट। फिर हम लाइक हम लोग को चाहिए इधर वी आर गोइंग टू द लेफ्ट डायरेक्शन और इधर वी आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, और प्रीवियस हम किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो यार राइट उस केस में हम लोग को बस एक डायरेक्शन का, मतलब एक डायरेक्शन का पैरामीटर होगा कि हम प्रीवियस किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। जिस डायरेक्शन से आ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली लेंथ को इंक्रीमेंट या नॉट इंक्रीमेंट करेंगे। अगर ऑपोजिट में जा रहे होंगे तो इंक्रीमेंट करेंगे उस डायरेक्शन के, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो फिर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो एक हमारा हो गया डायरेक्शन का। एक हमारा जो है इसके अंदर कितनी नोट्स हमने अब तक विजिट की हैं, तो उसके लिए तो आई गेस हम लोग को नोट्स को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हम डायरेक्टली एक लोकल वेरिएबल में भी उस लाइक इसको लेंथ को हम लोकल वेरिएबल में भी रीड कर सकते हैं। लेकिन मसला ये कि अगर हम लोकल वेरिएबल में रीड कर रहे हैं, हाँ ठीक है लोकल वेरिएबल में भी हम कर सकते हैं, लाइक कि अगर हम लेफ्ट से आ रहे हैं तो वो जो हमारी लेंथ है, मतलब अगर हम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग उस लोकल वेरिएबल की लेंथ को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, नहीं ऑपोजिट में जा रहे हो तो हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आई गेस वो हम सिर्फ लोकल वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। और द लास्ट थिंग इज कि जो हमने ये मैक्स वाली जो लेंथ हमने स्टोर करानी है, इसके लिए आई वाज थिंकिंग कि हम लोग जो है कैन वी समहाउ यूज अ लोकल वेरिएबल फॉर दिस, इस लेंथ को रिटर्न कराने के लिए। इज इट पॉसिबल कि वी कैन, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दैट। मतलब हम लोकल वेरिएबल से आपके आप मुराद ले रही हैं? मतलब विद इन, आप कह रहे थे ना कि ग्लोबल वेरिएबल हम लोग को ये लेंथ को काउंट रखने के लिए चाहिए होगा, मतलब जी लोकल वेरिएबल विद इन द डीएफएस फंक्शन,
मतलब जॉब वो साइड हम क्लियर स्टेप्स कर के तौर सकते पे रख सकते हैं ना, जिस तरह हम आमतौर पे ट्री ट्रैवर्सल के दौरान कह रहे होते हैं कि हमने नोट्स कितने ट्रैवर्स कर लिए, हैं। मैम तो मेरा वो हम क्वेश्चन ये था। कह सकते हैं कि पाथ बनाने। जी, हु इज स्पीकिंग? लेकिन अगर हम यहाँ से आ रहे हैं, सपोज यहाँ पर हमारे पास था टू, हमारे फर्स्ट नोट हम सेकंड नोट की तरफ आए थे, तो हमारे पास यहाँ पर टू था। अब यहाँ पर हमारी ये डायरेक्शन जो है हमें राइट मिल रही है, लेफ्ट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास राइट डायरेक्शन है, सपोज हमारे पास लेफ्ट नहीं है, तो हम अगर पिछले ही कंसिडर करेंगे यहाँ पर टू, तो ये हमारे पास वन नहीं हो जाएगा। हमें पिछले टू को ब्रेक कर देना। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है, कैन यू रिपीट? हाँ, फर्स्ट नोट से सपोज हमारे पास टू था, पिछली लाइन जो हमारे पास कैलकुलेट हुई थी वो टू थी। हम जब इस नोट पर पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, तो हमारे पास टू कैलकुलेट हुई थी। लेकिन अब हमें zigzag वे में जाने के लिए हमें इसके लेफ्ट पे जाना चाहिए, तो लेफ्ट पे कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। हम क्या करना है, हमने राइट साइड पे मूव करना है। तो हम राइट साइड पे तो इस तरह मूव नहीं कर सकते। हम अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो इसे टू को अपडेट, टू को टू ही नहीं रहना चाहिए ना, टू को जीरो हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट कैलकुलेट वन कैलकुलेट होना चाहिए, उनकी जगह यहाँ पे वन होना चाहिए। I think you are right. Let me just ये जी मैम, पीछे ना से यहाँ पे वन हो दोबारा। जाएगा, मतलब पहले वन था, इधर आके ऑन द राइट साइड वन रहेगा, बट ऑन द लेफ्ट साइड जो है वो टू हो जाएगा। सर अगर सपोज वहां पे किसी वजह से पहले टू था, तो फिर क्या होगा? मतलब आप लेंथ की बात कर रही हैं कि टू थी? जी सर, अगर लेंथ टू थी तो फिर क्या हाँ होगा? जी। तो फिर पिछली लेंथ को भी कैलकुलेट ही कर लेगा उसके साथ। हाँ, वो ये नहीं, कह रही हैं फिर ना। सिर्फ सिंगल लेगा ना। फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट की तरफ आई और अगेन लेफ्ट की तरफ ही आ रही हैं, ठीक है, तो इन दैट केस हमारा सिर्फ जिगजैग की सिर्फ एक लाइन है, वो ना ही लेफ्ट साइड की तरफ मूव ही नहीं कर सकता अभी। बेशक आप इसको एज अ कंसीडर कर लें, बेशक आप इस वाली पाथ को ऐसे कंसीडर कर लें, वो लेंथ हमारी वन नहीं रहेगी फिर। नहीं नहीं, लाइक इफ यू आर लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से आप आए, यहाँ पे लेफ्ट, इधर राइट, ठीक है, आपने स्टार्ट किया, you cannot go to the left, you can go to the right. Okay, initially it was 1. फिर यहाँ से आप लेफ्ट पे जाएंगे तो it will be 2. यहाँ से आपकी स्टिल 1 ही रहेगी। तो इस केस में लाइक तलहा इज राइट कि आप यहाँ से 2 आपका ऊपर से कभी आ नहीं रहा होगा इस केस में। और अगर आ भी रहा होगा ना, तो वो आपकी लेफ्ट से आ रहा होगा, डिफरेंट वैल्यू जो है ना वो लेफ्ट से आ रही होगी। फिर आप राइट पे जाएंगे तो इट विल गेट इंक्रीमेंटेड। और अगर आप यहाँ से फिर आगे, अच्छा इस तरह से देखें ना तलहा, अगर हमारे पास ऐसे है, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट से आया 2, हमने इधर ऐड कर दिया 3, ठीक है, अब इधर ये वाली नोड है, यहाँ से अब इस शुड बी 1, लाइक जो मिना वाली बात है ना, मिना यू आर स्पीकिंग राइट? जी मैं यही कह रही थी। हाँ, तो वो ये बात कर रही है कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से आप लेफ्ट पर आए, फिर यहाँ पे आके राइट पे 3 हो गया, तो अब ये नहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपका ये पाथ की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि ये इनवैलिड हो जाएगा। इस केस में एक नया आपका पाथ स्टार्ट होगा विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, like this will be reset to 1, I guess. Talha, see, like, did you get the point? जी मैम, क्लियर है मुझे। मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि यहाँ पे जब हम आके दोबारा ले रहे थे ना थ्री, ठीक है, इस जगह पे वो हम इंक्रीज मतलब वन पे नहीं थे यहाँ पे ला रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ से अगेन पाथ दोबारा से स्टार्ट हो रहा Right. है जी। अच्छा, अब इसमें एक कंफ्यूजन है, आई हैव जस्ट वन कंफ्यूजन कि इवेंचुअली यहाँ तक हमारे पास आंसर इधर से 3 आया, इधर से भी लेट्स सपोज
लिस्ट सपोज कर लें कि इधर से हमारे पास एंड पे 4 आया, इधर 2 आया, इधर 3 आया, तो हम लोगों ने इवेंचुअली जो है मैक्स आंसर रिटर्न करवाना है, राइट? तो आई गेस व्हेन वी रीच टू द लाइक व्हेन वी रीच टू द लीफ नोड, तो हम लोग वहां से मैक्सिमम, मतलब वो तो हम आई गेस डायरेक्टली ही अपने पास फंक्शन के अंदर ही मैक्सिमाइज करा सकते हैं। अब पता नहीं चला, हम जाती ना शायद ग्लोबल वेरिएबल में, शायद मैं किसी और तरह कंफ्यूज हो गई हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप ग्लोबल वेरिएबल की बात ऐसे कर रहे थे कि हम आउटसाइड ऑफ डीएफएस फंक्शन कोई वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे और उसको कहीं यूज करेंगे, लाइक दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, या फिर आप कुछ और कह रहे थे? जी मैम, मैं इसी तरह कह रहा हूँ कि मतलब हम डीएफएस जो मेथड बनाएंगे ना, लेट्स सपोज यहाँ पे हम डीएफएस मेथड बनाते हैं ये, ठीक है। इससे हम बाहर जो सा ना एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे, मैक्स लेंथ कह लें जिसे, ठीक है। और एक जो सा वेरिएबल है वो डीएफएस के अंदर एज हम कहेंगे कि उसका डिस्टेंस चल रहा है, जिसे आप स्टेप कह लें या पाथ कह लें, पाथ डिस्टेंस कह लें, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैक्स जो लेंथ होगा ना उसकी वेरिएबल की एवरी टाइम जब भी डीएफएस कॉल होगी ना दोबारा से, हम क्या करेंगे उसको अपडेट कर लेंगे कि मैक्स लेंथ ऑलरेडी जो मैक्स लेंथ है प्लस मैक्स लेंथ है और जो हमारे पास लेटेस्ट स्टेप्स आए हैं उनमें से, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी मैक्स होगा उसी को अपने पास रखेगा, मिनिमम को फिर ऑटोमेटिकली इग्नोर करता जाएगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल आगे जाके कोई पाथ बन भी जाता है ना, ठीक है, लेट्स सपोज के यहाँ पे आगे आके जहाँ पे कोई पाथ बन भी जाता है जिसका डिस्टेंस 2 था, ठीक है, यहाँ से, तो लेकिन हमें 3 वाला पहले से ही मिल चुका है एक, तो वो कॉलिंग तो होगी बट हमारे पास मैक्स लेंथ के अंदर 3 का ही बस पड़ा होगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हमें ग्लोबल वेरिएबल की शायद जरूरत ना हो, लाइक इफ वी ट्राई टू, मतलब हम इवेंचुअली, मतलब जिस भी नोट पे पहुंच रहे हैं, हम वहां से मैक्स वैल्यू रिटर्न डायरेक्ट वहां से ही कराएं। मतलब अगर मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, मुझे 4 मिला है, या यहाँ से लेफ्ट पास से मुझे 3 मिला, राइट से मुझे 4 मिला, तो आई नो कि यहाँ से, मतलब इस स्पेसिफिक नोट के लिए मैक्सिमम से पाथ, मैक्सिमम लाइक मतलब इस नोट पे नहीं, ऊपर से जो भी पाथ आ रहा था वहां से मैक्सिमम मेरे पास 4 जो है ना वैल्यू मुझे रिटर्न हुई, तो मैंने इसको ऊपर वैल्यू मैक्स 4 भेज दी। फिर ऊपर मैं कहीं पे भी आऊंगी, फॉर एग्जाम्पल इधर कोई मैक्स वैल्यू बन रही थी 5, तो जब मैं यहाँ से आऊंगी तो आई विल सी कि प्रीवियस वैल्यू जो मुझे रिटर्न हुई थी वो 4 थी और करंट वैल्यू मेरे पास जो है वो 5 है। तो मैं लाइक डायरेक्ट ऐसा भी कर सकती हूँ ना कि मैं बस जो करंट मेरे पास आंसर में जो वैल्यू मुझे मिली है या जो रिटर्न वैल्यू है, उनमें से लार्जर वैल्यू मैं रिटर्न करवा दूँ, क्योंकि इवेंचुअली फिर जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो फिर टॉप पे बबल अप होके आ ही जाएगी हमारे पास। मतलब आप यहाँ से बॉटम की तरफ से अप की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं? हाँ, मतलब एक वैल्यू तो हमारे पास इधर आ रही है ना, मतलब जो हमारा वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू ये आ रही होगी, कितने हमने अब तक एजेस एक्सप्लोर किए हैं जो फिक्स पाथ बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस वाली नोट पे आई हूँ और इस नोट के पैरामीटर में मेरे पास 5 की वैल्यू पड़ी है, ठीक है, और इवेंचुअली आई रीच टू दिस लास्ट नोट। अब मैं लास्ट पे पहुंची हूँ और इसके वेरिएबल में मेरे पास 4 फॉर एग्जांपल पड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रिटर्न करवाया 4 क्योंकि ये तो लास्ट वाली वैल्यू थी, ठीक है, मतलब व्हेन आई विल रीच टू दी नल नोड, सो मैं उसी जो प्रीवियस कॉल से मेरे पास वैल्यू आ रही होगी वो मैंने रिटर्न करवाई। तो इवेंचुअली आई रिटर्न 4 फ्रॉम इस वाली नोड की फंक्शन कॉल से मैंने 4 रिटर्न करवाई, ठीक है, और इसकी अपने में मेरे पास 3 वैल्यू थी। तो इट्स मीन इसमें से 3 एंड 4 में से 4 इज लार्जर, तो आई नो कि एक लार्जर पाथ एग्जिस्ट करता है रादर देन दिस वन, तो आई कैन रिटर्न इस वाले फंक्शन की कॉल से आई विल रिटर्न 4। फिर व्हेन आई विल रीच हियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके 4 ही मैंने रिटर्न करवाया, तो इस फंक्शन के लेफ्ट से आई गॉट 4, राइट से फॉर एग्जांपल आई गॉट 2 और एक वैल्यू है 5। तो मेरे पास अब 3 डिसीजन हैं कि क्या 5 इज लार्जर वैल्यू जो कि नोट की अपनी करंट पैरामीटर में वैल्यू है, या 2 रिटर्न इसके लेफ्ट एंड राइट से जो मुझे रिटर्न है, इनमें से कौन सी लार्जर वैल्यू, आई नो कि दिस इज द लार्जर वैल्यू, तो इसको मैं रिटर्न करवाऊंगी। तो इवेंचुअली फिर ये होगा कि जब मैं टॉप पे आऊंगी वापस, जब सारी फंक्शन कॉल्स रिटर्न हो जाएंगी दोबारा से रूट पे आ जाऊंगी, तो लार्जेस्ट वैल्यू मुझे रिटर्न होगी विच इज द डिजायर्ड वैल्यू वी वांट। क्लियर है ये बात? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होंगी,
ठीक है, तो आप किस बेस के ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो जिगजैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है? फॉर एग्जांपल अगर इस इन दिस केस देखें तो हमारा यहाँ से राइट साइड की तरफ वैल्यू जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे अगेन राइट साइड की तरफ जा रही है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, तो मतलब ये चीज किस तरह करके मेंशन मेंशन कर रहे होंगे उसमें? अच्छा, मैं इसको ना जरा वो करके दिखाती हूँ, ट्राई रन करके दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं 1 थी, इधर से मैं आई रिटर्न 0, क्योंकि लेफ्ट पे मैं जा नहीं सकती थी, यहाँ पर आई गेट 1। अब मैं यहाँ से क्योंकि लेफ्ट जा सकती हूँ, पीछे से 1 आ रही थी, वी गॉट 2। राइट पे जा सकती हूँ, सॉरी राइट पे नहीं जा सकती, पीछे से राइट डायरेक्शन ही थी, तो आई रीसेट दैट टू 1। अब मैं यहाँ पर आई, पीछे से वैल्यू 1 थी, आई गॉट 2, इसको वापस रीसेट कर दिया 1 पे, इधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में आई गॉट 3, इधर से सेम डायरेक्शन में आई गॉट 1, इधर से मतलब इसके लेफ्ट पे तो आई विल नॉट हैव एनीथिंग, क्योंकि इसके लेफ्ट पे तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब इस वाली के ऊपर आई गॉट दी वैल्यू 3, जहाँ तक मैंने 3 ली थी ना, तो इवेंचुअली फॉर एग्जांपल आई रिटर्न, अच्छा ये 3 वैल्यूज, इन वैल्यूज को ना हम इन नोट्स के साथ, एक मिनट दोबारा इन नोट्स के साथ लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 0, आप इस कॉल पे आए, इसके पैरामीटर में वैल्यू है 1, आप इधर आए, इधर यू गॉट वैल्यू 2, इधर वैल्यू 1 हो गई, इधर आप आए, इधर 2 हो गई, इधर दोबारा से 1 हो गई, इधर आप आए तो इट वाज 3, और इधर आए तो इट वाज 1। ठीक है, अब अगर आप इसके लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट पे आपको नन है, इस वाले पे वैल्यू 3 थी, यू रिटर्न 3, या चले आप लेफ्ट पे ना भी आए क्योंकि चाइल्ड एक इसमें करता तो चले वहां आ जाए। अब यहाँ पे आपके पास 1 है, दिस इज द लीफ नोट, तो लीफ नोट इसने इसको कॉल किया था, इसने आपको रिटर्न वैल्यू दी 1, ठीक है, और यहाँ पे आपकी करंट वैल्यू थी 3, लेफ्ट पर कुछ भी नहीं था, तो वी डिड नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि हमने लेफ्ट पर कॉल भेजी नहीं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल लेफ्ट पे कॉल भेजी भी होती तो आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू 3 भी रिटर्न करवा सकते थे। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास अभी जो है ना 2 वैल्यूज का डिसीजन है, 3 एंड 1। अब 3 एंड 1 में से 1 3 इज मैक्सिमम, क्योंकि जो इस पाथ से आ रही थी वो मैक्सिमम थी, ना कि ये वाली राइट साइड से जो हमें मिला, तो हमने इधर से रिटर्न करवा दिया 3, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डिसीजन है टू मेक द वैल्यू फ्रॉम 2 एंड 3। अब अगेन इसमें से 3 इज लार्जर, तो ये इस वाली फंक्शन कॉल से वी विल रिटर्न 3। अब इधर से हमने रिटर्न किया 1, अब हमारे पास है वैल्यू एक ये वाली 1, एक ये रिटर्न राइट साइड से, एक ये रिटर्न लेफ्ट साइड से। अब इसमें से लार्जेस्ट कौन सी है? 3 है, तो इस फंक्शन कॉल से आई रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू विच इज 3। यहाँ से मैंने रिटर्न करवाई 2, अब मेरे पास एक वैल्यू है 3, एक है 2, मतलब इसके लेफ्ट से गॉट 3, आई गॉट 2, राइट से आई गॉट 3, एंड इसकी अपनी जो है 1। अब उसमें से लार्जेस्ट कौन सी है? 3, तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन कॉल से 3 रिटर्न करवा दिया, और इवेंचुअली रूट के ऊपर आई गॉट द आंसर 3। so this is what how I guess this can be done. जी मैम, आई थिंक सो मैं भी इसी तरह कह रहा हूँ, बट मेरे केस के ऊपर ये है कि जो आप रिटर्न वैल्यू वापस कर रही है ना, कि यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, और जहाँ से क्योंकि कुछ नहीं था तो विच मीन्स यहाँ तक 3 था, तो 3 और 1 का जो मैक्सिमम आएगा वो ऊपर जाएगा, अगेन 2 और 3 का जो मैक्सिमम आएगा वो ऊपर जाएगा। मैं रिटर्न नहीं था करवा रहा, मैं क्या कर रहा था कि ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू जब भी मैक्सिमम कैलकुलेट होगी ना, जैसे इन दिस केस ये था कि इस साइड पे 0 था और इस साइड की तरफ से 1 था, विच मीन्स हमारे पास जो मैक्सिमम के अंदर इनिशियली वैल्यू, लेट्स सपोज हमारे पास 0 थी ना, कि अभी हमारे पास कोई लेंथ नहीं है, 0 थी, अब 0 और 1 में से एक हमारे पास 1 इंक्रीज हो गया, विच मीन्स हमारा मैक्सिमम जो है ना वो 1 हो गया, ठीक है। नो, अब मैंने मजीद आगे हुआ तो यहाँ पे अब मैं आया तो मेरी लेंथ 2 हो गई, जैसे जब आप जाते हुए कह रही थी, और यहाँ पे जब आया तो वो लेंथ इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि अगेन मैं राइट से राइट की तरफ ही आ रहा हूँ, विच मीन्स 1 नहीं रही। बट मेरे पास जो सा ये एक 2 है और एक 1 है, अब मेरे पास जो लेंथ है ना वो इधर ही कंपैरिजन होके अपडेट होगी कि 2 लेंथ मेरी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अगेन मेरे पास जब मजीद आया तो यहाँ पे मैंने देखा तो इधर तो कुछ है नहीं था, बट जब मैं यहाँ पे आया तो इस जगह से अगेन 1 ही स्टार्ट हो रहा था अभी, ठीक है, 1 ये है, और जब मैंने इधर भेजा तो अगेन 2 है, और इस तरह भेजा तो अगेन 1 ही रह रहा है, तो 2 और 2 में से जब वो मैक्सिमम लेगा ना, ऑलरेडी 2 है और ये लेटेस्ट भी 2 है, तो वो 2 मतलब ये 2 ही रहेगा अपडेट होने के बाद भी,
क्योंकि इन दिस केस भी 2 था और लेटर अपडेटेड वैल्यू में भी 2 ही है। बट जब यहाँ में आएगा ना कि इस साइड पे आया तो वो 3 हो गया, और इस साइड पे तो वो जा नहीं सकता क्योंकि है नहीं है। तो अब इन दिस केस लेटेस्ट के अंदर हमारे पास जो है वो 2 है, बट हमारे पास जो मजीद ऐड होके है वो 3 हो गया, तो विच मीन हमारे पास अपडेटेड वैल्यू 3 होगी यहाँ पे। और मजीद आगे गए तो ऑन द राइट साइड जब जाएगा वो तो 1 हो जाएगा, और ऑन द लेफ्ट साइड वो जा नहीं सकता। तो जब 1 और 3 में से कंपैरिजन होगा तो ऑब्वियसली 3 एंड ग्रेटर है तो वो 3 ही रहेगा, विच मीन हमारे पास ऑटोमेटिक ग्लोबल के अंदर वो 3 आ गए। बाकी ये रिकर्जन की पहले हम रोल कर रहे थे, और अनरोलिंग जस्ट बैक की तरफ एम्प्टी ही जाता रहेगा। ये कि मेथड को खत्म करना है उसको, मतलब उस केस में मैं रिटर्न कुछ नहीं था करा रहा थी। बाकी सही, लॉजिक आई थिंक like, सेम ही थी। हाँ, लॉजिक सेम है, जस्ट आई वाज सेइंग कि लाइक इफ वी कैन अवॉइड दिस ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि यूजुअली मेरी प्रेफरेंस होती है कि जहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल को अवॉइड कर सके ना, तो इस वजह से आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। अदरवाइज लॉजिक इज एग्जैक्टली द सेम। या जी वेरी गुड, लाइक मिना एंड तलहा, यू बोथ डिड द ग्रेट जॉब। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लें फिर। जी मैम। अच्छा, पाइथन है, ओके। हमने एक DFS फंक्शन कॉल किया एंड इसके अंदर we will need the first thing is key root, which is free node and obviously it can be optional. अच्छा, ये मैंने वैसे खुद लिखना शुरू कर दिया है इस तरह से, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यूअर्स ना, ये आपसे, मैं यूजुअली पहले लिखती होती थी डायरेक्ट ऐसे ही ना, ये मैं ना टाइप्स में लिखती थी, तो एक इंटरव्यू में मुझसे ना इंटरव्यूअर ने कहा कि रिटर्न टाइप भी लिखें तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो कैसे लिखते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी पाइथन पे काम कर रहा है ना, तो वो इस चीज को भी कर लिया करें, क्योंकि फिर इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे ये चीज। अच्छा, ठीक है। रूट हो गया, और क्या था हमारे पास, डायरेक्शन थी, डायरेक्शन होगी और which will be, पाथ काउंट होगा। डायरेक्शन को हम एंटी ले लेते हैं 0 या 1, 0 को हम लेफ्ट कह देते हैं या -1 को लेफ्ट कह देते हैं, और बल्कि 0 1 क्योंकि हमने उसको फ्लिप भी करना है ना, तो फॉल्स ट्रू जी 0 1, या इसको फॉल्स ट्रू कह दें, बोल लिख देते हैं मेरे ख्याल, ताकि वो हम फ्लिप करा सकें उसको। अच्छा, और डायरेक्शन हो गई, और क्या था हमारे पास, पाथ जो था ये सम, डिस्टेंस जो है। नोट्स, डिस्टेंस कह देते हैं हाँ इसको, which will be int and int, okay। अब हमारे और आई पास थिंक एक और पैरामीटर होगा कि लास्ट स्टेप हमने कौन सा लिया है। वो तो ये डायरेक्शन, अच्छा हाँ, वो डायरेक्शन ही हो जाएगी ना कि हमने लास्ट टाइम कौन सी डायरेक्शन में मूव किया था। if not true तो we will return the distance that currently we have, और अब हमने either we can move to the left or you can to the right, तो root dot left, और हमें यहाँ पे डायरेक्शन जो है, अच्छा इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इनसाइड दिस हमने इसको either we can move to the left or to the right, तो अगर हम लेफ्ट पर मूव कर रहे हैं, न्यू डायरेक्शन, what should I call it, नेक्स्ट, थोड़ी सा ना लेफ्ट डायरेक्शन कह देते हैं, तो न्यू डायरेक्शन कह देते हैं अभी इसको, न्यू डायरेक्शन। अच्छा, न्यू डायरेक्शन हमारी होगी is will be मतलब न्यू डायरेक्शन में हमने जाना है तो डिस्टेंस को अकॉर्डिंगली अपडेट करना है, वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, so we can say डिस्टेंस जो है हमारा, इट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस 1 जो पीछे से आ रहा है। इफ डायरेक्शन जो है, इफ डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, इसको हम लेफ्ट को हम कह रहे हैं कि, थोड़ा एक मिनट, इसको इस तरह से देखना पड़ेगा कि अगर हम पीछे से लेफ्ट आ रहे थे और अभी भी हमारे पास लेफ्ट को हम कह रहे हैं ट्रू, और राइट को हम कह रहे हैं फॉल्स। एक मिनट, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। लेफ्ट डायरेक्शन है हमारी ट्रू एंड राइट डायरेक्शन है हमारी
false. अगर डायरेक्शन है तो फिर ये करो कि सॉरी ये एनोटेट कहाँ से बंद होता है। अच्छा, अगर डायरेक्शन है तो फिर डिस्टेंस को अपडेट ना करो, ठीक है। इफ नॉट डायरेक्शन मीन्स इफ इट इज ऑपोजिट तो डिस्टेंस को अपडेट कर दो एल्स इट विल बी 1। और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी अब, लाइक वी आर इन द सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस और distance will be rated like this. इसमें एक और चीज देख लेते हैं, we were on the left side, like we were on left, दोबारा से लेफ्ट पे मूव है, डायरेक्शन अपडेट नहीं हुई। we were on the opposite direction, तो डायरेक्शन जो है वो अपडेट हो गई। और अगर हम राइट पे हैं तो अच्छा ये भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि if we were coming from the right side तो डायरेक्शन will not be flipped, और अगर हम लेफ्ट पे आ रहे हैं तो हम डायरेक्शन को फ्लिप कर रहे हैं, तो ये भी हमें यहाँ से डायरेक्शन का भी अपडेट करना पड़ेगा। डायरेक्शन इज इक्वल्स टू नॉट डायरेक्शन, थोड़ा सा अजीब सही हो गया कोड, एस डायरेक्शन। मैं लेफ्ट पर थी एंड आई वाज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन से इसी डायरेक्शन में अगर जा रही हूँ तो डायरेक्शन विल नॉट बी फ्लिप्ड। और ये थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है। हाँ आई ठीक ठीक है, आई गेस जब हम लेफ्ट से आ रहे हैं तो इट विल बी ट्रू, अदरवाइज इसको हम अपडेट नहीं करें इट विल बी द नॉट डायरेक्शन, बस डिस्टेंस हमारा अकॉर्डिंगली अपडेट होगा। और सिमिलरली यहाँ पे से हम लोग क्योंकि इसको राइट कह रहे हैं तो वी विल डू इट लाइक दिस, इफ नॉट डायरेक्शन एज 1, और यहाँ पे ये चीज सेम रहेगी, और नाउ इट विल मूव टू द राइट एंड डिस्टेंस हमारा अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। और यहाँ से वी विल से लेफ्ट अंडरस्कोर डिस्टेंस which is this, यहाँ से we'll have right underscore distance which is this, और current distance हमारा है which is this distance, okay? और हमें return कराना है max of left underscore distance and right underscore distance and current distance, okay? और eventually we will return DFS start from root। और अच्छा हमें स्टार्टिंग में डायरेक्शन कौन सी लेनी है ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। डिस्टेंस तो इनिशियली 0 होगा, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन दैट वी विल बी मूविंग इनिशियली। डायरेक्शन वी विल ट्राई टू मूव इन द, लाइक इनिशियली इफ वी ट्राई टू मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा ड्राई रन करके। और डिस्टेंस हमारा इनिशियली है 0, तो इस साइड के हमने इनिशियली लेफ्ट डायरेक्शन पिक की, so it just came here and it said the distance is equals to distance plus 1 if not direction, so like हमने left direction pick की है currently, मतलब just for the initial one, and now next we need to move to the right direction. Yeah, I guess this will work as well, क्योंकि जब हम by default कह रहे हैं कि we are coming to the route in the left direction, या अगर हम इधर से भी आ रहे होते तो फिर भी मतलब मैटर नहीं करना था ये, तो इसलिए I guess this should work. Okay, let's just try to run it. Okay, it's giving me output 2. कहीं से मैंने distance को तो नहीं गलत कर दिया, initially distance was 0 and when I reached to the last one कोड थोड़ा सा अजीब सा हो गया ये, let's just try to dry run it. I started from here and I said I came from the
लेफ्ट मैम डायरेक्शन। आई थिंक सो कि आप सिर्फ लेफ्ट डिस्टेंस और राइट डिस्टेंस का मैक्स रिटर्न करवाएंगी। नहीं तीसरा नहीं, पैरामीटर डिस्टेंस क्यों ले रहे तीसरा हैं? तीसरा डिस्टेंस है, यस, ये वाला। इसमें आपको कुछ मसला नजर आ रहा हो, अदरवाइज यू कैन ट्राई रन दिस। इनिशियली मैंने नॉट 0 डिस्टेंस डायरेक्शन। लिया, not it. I took 0 और I said कि I came from left direction. अब मैं distance equals to distance plus 1। एक्चुअली ना ये थोड़ा सा वो हो रहा है, इसकी वजह से ना कोड मतलब रीडेबल इतना नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्शंस को उस तरह लिखेंगे ना मतलब लेफ्ट राइट करके, तो फिर कोड जरा लेंथी हो जाएगा। इस वजह से आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड दैट, अदरवाइज इसके साथ थोड़ा सा रीडेबल हो जाना है कोड। तो अब मुझे थोड़ा सा इस वजह से हो रहा है, इसको हम आप लेफ्ट। इसको थोड़ा सिंपल करें ना, ये नॉट ऑफ नॉट को खत्म करें। इफ डायरेक्शन तो देन ये होगा, नहीं तो एल्स ये होगा, और ये नॉट वाला केस हो गया। ओ ये नॉट नॉट हो गया, सॉरी, ये नॉट सिंपल सिंगल नॉट, मैंने डबल नॉट हम्म। लगा दिया। अच्छा सॉरी, राइट। हम उसके और लेफ्ट पे था, पर हम राइट पे आए हैं ना, लेफ्ट पे यहाँ और पे नहीं ये एक था सिंपल हमारे। डिडक्शन रहेगा। हम्म, अम, रूट ऑफ यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम राइट से आए हैं तो हम दोबारा से राइट पे जाएंगे तो डिस्टेंस प्लस 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग को ये कहना चाहिए। और हम दोबारा से अगर लेफ्ट पे जा रहे हैं, लेफ्ट को हम ट्रू कह रहे थे, तो इस केस में इट विल बी डिस्टेंस एज इट विल बी डिस्टेंस प्लस 1। और हम नॉट डायरेक्शन को राइट कह रहे थे, तो अगर हम दोबारा से राइट पे ही जा रहे हैं तो इट विल बी डिस्टेंस। और अगर हम क्योंकि हम यहाँ से दोबारा राइट पे ही जा रहे हैं, अच्छा एक्चुअली हम राइट से आए और हम दोबारा राइट पे जा रहे हैं, तो एक तो सॉरी इट्स जस्ट गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। वी आर मैं कमिंग ऊपर फ्रॉम द कमेंट राइट जरा कर लें, अगर लेफ्ट है तो वो ट्रू है। डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ट्रू, तो which लेफ्ट means है। direction equals to false, so it means it is right. ओके, अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि हम मतलब डिस्टेंस इफ लेफ्ट, तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, फिर हम दोबारा लेफ्ट में जा रहे हैं, अदरवाइज वी विल अपडेट इट। ओके, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, मतलब अगर डायरेक्शन जो है वो राइट है और हम दोबारा राइट पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस सेम रहेगा, अदरवाइज डिस्टेंस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, आई थिंक सो इसमें ये एक मिस्टेक है कि अगर वो डायरेक्शन है तो इन दैट केस ये 1 होना चाहिए, डिस्टेंस 1 होना चाहिए, एल्स डिस्टेंस प्लस 1 होना सॉरी, चाहिए। और और इधर भी यहाँ मसला पे हुआ भी, है, इधर यहाँ भी पे वन भी। होगा। Okay, it's still not returning the correct answer. ओके, मैं जिस तरह मैं कह रहा था ना, आई वाज ट्राइंग दैट सो, तो मैं आपको ना कोड शेयर करता हूँ, आप इसको पेस्ट करके जरा देखिएगा, माइट भी वो फिर इसको इस तरह इम्प्लीमेंट कर लें। Mhm. यहाँ से करते हैं तक। ओहो, इसको रिमूव ना ना करें, नीचे पेस्ट कर लें इसके। हाँ मैं इसको यहाँ से बस कॉपी कर रही हूँ एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट राइट हियर। जी, तो और जिस तरह आप कह रहे थे ना कि पहले तो मैं ये ले रहा था कि लास्ट स्टेप हमने क्या लिया था। मतलब वो ठीक है, आप लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं कि इट इज नहीं मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कहा था कि वो ऑटोमेटिकली हमारे ये डायरेक्शन का वेरिएबल फिर हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये सपोज किया कि अगर तो डायरेक्शन ट्रू है ना, विच मीन्स कि लेफ्ट है,
ठीक है, और अगर फॉल्स है तो इट मीन्स कि वो राइट होगा, ठीक है। और जिस तरह मैं कह रहा है ग्लोबल वेरिएबल एक मैक्स लेंथ का बना रहा हूँ, इनिशियली उसको 0 सपोज कर रहा हूँ, ये जाते हुए जो है ना अपडेट करता रहेगा। अगर तो मेरी नोड एग्जिस्ट करती है इन दैट केस, पहले तो मैंने उसका मतलब जिस तरह आप वो डायरेक्शन जो डिस्टेंस रख रही है ना, मैंने उसको क्या किया, वो मैक्स लेंथ को ही अपडेट जस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सही। कि मैक्सिमम लो ऑलरेडी जो मैक्स लेंथ है और जो लेटेस्ट स्टेप्स आए हैं आपके पास, ठीक है, या डिस्टेंस आया जो आपके पास। और इफ अगर तो डायरेक्शन ट्रू थी, मतलब ट्रू का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहे थे, देन लेकिन हमने डीएफएस दोनों के लिए कॉल करनी है, ठीक है। नो डॉट राइट के लिए भी, नो डॉट राइट के लिए करनी है, तो देन इट मीन स्टेप में +1 करना है और उसको फॉल्स करके भेज देना है, मतलब अपोजिट भेज देना है, ठीक है। और अगर हमने और लेफ्ट को भेजना है, बट लेफ्ट के लिए स्टेप जो है वो 1 हो जाएंगे, क्योंकि पिछली जितनी भी कंपटीशन थी ना वो हमारे कुछ भी नहीं है। अब लेटेस्ट कंपटीशन दोबारा से हमारे स्टार्ट होगी और वो ट्रू ही रहेगा, ठीक है। और उसी का ऑपोजिट केस के इफ नॉट डायरेक्शन, मतलब अगर डायरेक्शन ऑलरेडी फॉल्स थी, इन दैट केस हमने क्या किया कि लेफ्ट की तरफ हमने अब जाना है और स्टेप +1 कर दिया लेफ्ट के लिए और ट्रू पास कर दिया, और राइट के लिए फॉल्स को पास कर दिया और साथ उसके लिए 1 पास कर दिया, कि दोबारा से वही 1 के लिए कंपटीशन हो गया अब नए सिरे से। और डीएफएस कॉल किया है इनिशियली मैंने लेफ्ट को लेके कि ट्रू है, और ये 7 स्टेप को लेके कि 0 स्टेप हुए हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें ना इसको आई एम सेइंग कि इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। इधर यू कैन से इफ नॉट मोड, तो वी कैन रिटर्न दी, ये स्टेप आपके डिस्टेंसेस हैं, हाँ डिस्टेंस है जी, राइट। रिटर्न स्टेप कर लें। इसको हम ये कर दें, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, इसको मैं इधर मूव कर दूं, और इसको भी रिमूव कर दूं, ठीक है। और यहाँ पे आई विल बी डूइंग लाइक, यहाँ पे मैं करूँगी कि स्टेप्स, या व्हाट शुड आई से, डिस्टेंस मे बी, डिस्टेंस देन इज आगे भी इक्वल्स आपको टू, सारा चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं अभी हो जाता है, ये मैं बताती हूँ। फ्लोट ओके, इन इन्फिनिटी, मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि मिनिमाइज कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं राइट, मैक्सिमाइज कर लें। माइनस, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस जो है इट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ दिस कॉमा दिस, ठीक है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ दिस कॉमा दिस, और फाइनली रिटर्न min डिस्टेंस। ऑफ डिस्टेंस एंड स्टेप p, ठीक है, वो भी हमारे पास है ना, दिस वन। एंड आई गेस रिटर्न dfs ऑफ दिस एंड रन कोड। कुछ मैंने मिस ना करा दिया हो। डिस्टेंस डिस्टेंस का नहीं आपने, मतलब दोनों का ही डिस्टेंस ले लिया, दिस ये चीज। dfs मतलब मतलब ये लेफ्ट डिस्टेंस राइट डिस्टेंस करके नहीं आएगा, और फिर उनमें um, से ये मैक्सिमम करवाना था हमने। हम्म, लेकिन हम लोग बेसिकली लेफ्ट डिस्टेंस या राइट डिस्टेंस की अगर बात करें तो तो बेसिकली वी आर रिटर्निंग, अच्छा नहीं एक मिनट सॉरी, इसमें ये स्टेप को नहीं लेना चाहिए, स्टेप शुडंट बी हियर, क्योंकि उसकी वजह से इनिशियली आई डोंट थिंक सो इट्स गोना वर्क, क्योंकि इसमें मसला ये हो रहा है कि आपके पास ना बेसिकली आप मिनिमम जब ले रहे हैं ना, तो जब यू आर कमिंग हियर, ठीक है, तो बट इसको मसला नहीं करना चाहिए था, इट शुड हैव वर्क। बट आई एम थिंकिंग कि अगर आपके पास कोई ऊपर यहाँ से, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इट वाज मैक्स नॉट मिन, मैं वही कह रही हूँ व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, सॉरी अबाउट दैट, आज मेरा दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है, तो लेट्स जस्ट बेयर इट। किधर गया, इट वाज मैक्स नॉट मिन,
comma step. Okay. Okay, there is something wrong with it. I will look into this, but it should work. Like we did the dry run, and I guess it should work. एक step ही extra कोई ले रहा है इसके अंदर, and I guess वो शायद initially हमने 0 से start किया था, right? और अच्छा, इसको बाद में देख लेते हैं. अभी जो हमारा previous था, let's just try to submit that. अच्छा तलहा, इसको ना देखिएगा विदाउट ग्लोबल वेरिएबल भी, बिकॉज मैं कोई इस तरह का देखना चाह रही हूँ कि जिसके थ्रू हमें ग्लोबल वेरिएबल की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ना समटाइम्स इंटरव्यूअर्स जो है ना वो इस चीज को मतलब वो करते हैं कि यू डोंट यूज ग्लोबल वेरिएबल्स वेयर एवर पॉसिबल. तो ठीक इसको है. ना एक उस वे में भी देखिएगा. मैं भी इसको देखती हूँ. आई थिंक सो कि इट शुड वर्क विदाउट ग्लोबल वेरिएबल एज वेल, बट अभी it's not working. There is something that is missing here. ठीक है. I guess time is over. So अच्छा, जस्ट क्विकली, जस्ट हमारे पास 4 मिनट्स रह गए हैं, जो हम प्रीवियस एक कर रहे थे ना प्रॉब्लम, जस्ट मैं वो दिखाना चाह रही थी कि उसमें where did it go? अच्छा, वो मैंने बंद कर दिया है. जो हम स्क्वायर्स वाली प्रॉब्लम कर रहे थे ना, वो आपने इम्प्लीमेंट की थी, जो टेक्स्ट स्क्वायर्स वाली. नहीं मैम, मैंने वो नहीं ट्राई की थी. अच्छा, उसके ना उसका वो मुझे मैं एक कोड नहीं एक तो चलाया था. जो हम लोगों ने सॉल्यूशन डिस्कस किया था ना विद यूजिंग दी मिड पॉइंट्स के थ्रू, जो हम लोगों ने कहा था कि इस तरह हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब मिड पॉइंट्स के थ्रू वी विल बी, मतलब एक वो तो सॉल्यूशन वर्क कर ही रहा था, लेकिन ना एक उससे ज्यादा स्मार्ट सॉल्यूशन था जो मैंने ना उसके डिस्कस में देखा था. मतलब इट वाज वे मोर स्मार्टर और लेस कोड था जिसके अंदर. उसमें बेसिकली हमें, क्योंकि अब पता है कि हमारे पास इस तरह के तो स्क्वायर्स हैं नहीं, जस्ट वी हैव दीस टाइप ऑफ स्क्वायर्स. तो उस केस में अगर हम लोगों ने ये वाला डायगोनल फाइंड आउट कर लिया है ना, तो दूसरे डायगोनल को फाइंड आउट करने के लिए वी डू नॉट लिटरली नीड दीस मिड पॉइंट्स. मतलब ये सारी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है ना, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत है ना, हमें dx dy जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, डायरेक्टली हम लोग दूसरे ये पॉइंट्स जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे x1, y1 है, और यहाँ पे हमारे पास x2, y2 है. तो जो दूसरा पॉइंट जो p3 एंड p4 होगा ना, p3 होगा हमारा x1, ठीक है, और मतलब ये वाला वैल्यू हमारी हो जाएगी x2, और ये वाली वैल्यू होगी y1. ये हमारा p2 हो जाएगा, p3 हो जाएगा, और p4 होगा x1 और y2. नहीं, x1 और, क्योंकि हमने इससे फाइंड आउट करना है ना, तो इट विल बी x1, यहाँ पे से दूसरा पॉइंट बनता है, सॉरी, इट विल बी y1 हमारा सेम रहेगा, ठीक है, और x2, तो ये हमारा बन जाएगा p4. तो जस्ट हम लोग को वंस वी हैव फाउंड दीस डायगोनल पॉइंट्स, तो उनके ऑपोजिट पॉइंट्स जस्ट इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे हम. तो वो काफी सिंपल था. मतलब हम जस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करें और वो पॉइंट्स देख लेंगे, पॉइंट्स में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं. हम्म. तो अगर होते होंगे तो इट मीन्स वो एक स्क्वायर बना रहे हैं, नहीं तो नहीं बना रहे हैं. हम्म. बट इसमें वो वाली चीज हैंडल हो जाएगी कि मल्टीपल पॉइंट्स जो उनसे हैं, हाँ, वो मतलब भी हैंडल हो सेम जाएगी. जो उनसे वो मल्टीप्लाई बाय करके उससे हो जाएगा, काउंट से. क्योंकि ना हम इसमें वो नहीं ले रहे. हम एक तो जो हमने कहा था कि वो वाली चीज तो रहेगी कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट्स को नहीं ले रहे, मतलब जो पैरेलल, और मतलब जो हमारे क्यूरी पॉइंट से पैरेलल, अगर ये हमारा क्यूरी पॉइंट है,
उससे पैरेलल या परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स हैं वो तो हम ले नहीं रहे, हम सिर्फ डायगोनल पॉइंट ले रहे हैं। और डायगोनल्स में भी ना हमारे पास कंडीशन 3 आते हैं। एक तो x1 x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर x1 x2 के इक्वल है तो इट्स मीन वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट पॉइंट, वो हमें हेल्प नहीं करेगा। इसी तरह अगर y1 y2 के इक्वल है तो वो भी हमें हेल्प नहीं करेगा। और तीसरी चीज, हम लोग को सिर्फ डायगोनल पॉइंट लेना है, तो डायगोनल के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2 इट शुड बी इक्वल, क्योंकि तभी वो डायगोनल होगा। डायगोनल के केस में ना आपकी, अगर आप इनका डिस्टेंस लेना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 लें और इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू y1 माइनस y2 लें स्क्वायर के केस में, तो वो आपकी इक्वल होती है। तो उसका मतलब है कि यू हैव फाउंड अ डायगोनल पॉइंट। तो बस आपने जस्ट सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये वाली कंडीशन यूज होगी कि वो मतलब x1 x2 और ये चीज इसके इक्वल है, तो वो आपका डायगोनल पॉइंट है। और फिर ये दोनों पॉइंट्स आप डायरेक्ट इन दो पॉइंट से यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्यूरी पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है। डायगोनल पॉइंट आपने कंडीशन से चेक कर लिया और फिर ये दो पॉइंट्स आपने इन दो पॉइंट्स से फाइंड आउट कर लिए। बट आई थिंक इसके अंदर भी हमें ये लाजमी करना पड़ेगा कि ऑल पॉइंट्स के ऊपर से ट्रैवर्सिंग करके हाँ वो करना तो पड़ेगा। कौन सा डायगोनल बनाने के लिए यूज हो रहा है ये चीज देख